Can you see the screen? Can you see the screen? Is there? Chandana, will you be able to see the screen? No? Good evening. Good evening. Good evening, sir. Only Chandana is available. Nobody is there. Only one, right? I think. Yes, sir. चलो कोई नहीं, आपको ही पढ़ाएंगे आज. So we are in partnership. एडमिट कैसे? Good evening. So we are in partnership. We have done with admission of a partner. And second thing, retirement. Admission का क्या मतलब है? Already there are A and B when C is coming and adding in this. This is called admission of a partner. Then A, B, C are there. One person is going to retire from so and so date. So this is called retirement of a partner from partnership firm. Right? We have seen what are the different steps to follow when you are doing admission and when you are doing retirement of a partner. Right? So what are the steps? So admission में भी retirement में भी जो भी है, तो आपको पहले fair value of business determine करना पड़ता है. तो fair value of business you have to determine. So how? So first you will prepare a revaluation account. So what are the different steps here involved? First one is your calculating your profit sharing ratios. In case of admission, what will happen?
sacrificing ratio will come. In case of retirement, which one will come? Gaining. Very good. So gaining ratio will come, right? इसके बाद क्या करना है आपको? PSR में new ratio and old ratio are there already, right? So there are two ratios. After that, if it is an admission, then you are calculating sacrificing ratio. If it is a retirement, you are preparing gaining ratio, right? Second thing what you have to do, you have to calculate the goodwill. So treatment of goodwill, treatment and valuation of goodwill. Treatment and valuation of goodwill. Third thing, what is the third one? So you will prepare a revaluation account to see what are the balances of assets and liabilities as on date. And what is the treatment? What we will do with revaluation account? If there is any revaluation profit or loss, we will distribute it to the old partners in Old ratio. old ratio. Very good. So we will distribute the revaluation profit or loss to the old partners in old ratio. Next, fourth one. What we will do next? We will distribute reserves and surplus. Reserves and surplus. Fifth thing, if it is a retirement, we will settle the capital. Settlement of capital accounts. क्या कुछ ऐड हो रहा है या लेफ्ट होगा? यस, ऐड हो गया. चलो, सो वी विल सी सेटलमेंट ऑफ कैपिटल्स. देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट. फिर इसके बाद फाइनल अकाउंट्स, राइट? So here the important point is valuation of goodwill and its treatment and revaluation account. And then reserves and surplus will be automatically distributed to whom? It will be distributed to Old partners. old partners in Old ratios. old ratio, right? OBOR. ठीक है. इसके बाद आपको अगर ये retirement होता तो what you will do, you will settle the capital account first and then you will prepare the capital account, final accounts of the partnership firm. Okay, so with this you will start next year's business, right? यहाँ पे एक चीज आपको देखना है, अगर आपको admission होगा या retirement होगा, whenever an admission is or retirement is happening, when it will occur, usually ये year end में या year starting में होती है. Year end or year starting. When it will happen, it is happening at the year end or at the year starting, right? Because so जब भी एक आदमी बाहर जाएगा, अगर एक आदमी अंदर आएगा तो उन्होंने बोलेगा कि भाई अभी ज्यादा झमेले में क्यों पड़ना है, तो अभी साल एंड में आते हैं, नहीं तो साल की स्टार्टिंग में आते हैं. तो इफ ही कम्स ऑन ईयर स्टार्टिंग, देन द अकाउंट्स विल बी गुड एंड उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी अच्छा है, जो भी करना है वो आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं. बट in this case here we are going to see the next part of partnership accounts. This is death of a partner. Death of a partner. Death of a partner, ठीक है. अगर डेथ होगा तो पार्टनर का डेथ होगा, तो अभी क्या अकाउंटिंग करना है? तो पहले हमने देख लिया, अगर एडमिशन हो गया तो हमको पता है कि क्या करना है. अगर रिटायरमेंट हो रहा है, मतलब वो छोड़ के जा रहे हैं, ही विथ हिज विलिंगनेस. रिटायरमेंट में और डेथ में क्या डिफरेंस है? सो रिटायरमेंट में क्या होता है, उन्होंने हिज विलिंगनेस विल बी देयर, उन्होंने बोलेगा कि मैं जाऊंगा कल की डेट से, कल नेक्स्ट ईयर से या नेक्स्ट कल से, जो भी बोलेगा वो उन्होंने with his willingness he will tell that I am leaving this firm from tomorrow onwards or from next month onwards. लेकिन जब डेथ होता, डेथ ऑफ ए पार्टनर होता,
वो ऐसे बोलता है कि मैं नेक्स्ट मंथ में मर जाता हूँ, ऐसा है क्या कोई? नहीं। दिस इज द डिसीजन नॉट टेकन बाय दिस पर्सन, दिस इज द एक्ट ऑफ ए गॉड। जो भी डिसीजन लेना है वो ऊपर वाला ले लेगा, हमारा पार्टनरशिप फॉर्म का कुछ नहीं है। अगर वो डिसीजन लेगा तो डेथ कैसे करना है वो ऊपर वाला करेगा, तो उसको करने के बाद हमको जाएंगे ऐसे। लेकिन ये ईयर एंड में होता है या ईयर बिगिनिंग में होता है या ईयर मिडल में होता है, कभी भी हो सकता है। अगर मान लो अभी मैंने फर्म खोला, फिर इसके बाद 3 महीने के बाद कुछ हो गया तो 3 महीने के बाद खत्म, फिर 6 महीने के बाद हो गया तो 6 महीने, 6 महीने 3 दिन के बाद हो गया तो वो भी हो सकता है। नहीं तो 11 महीने 28 दिन के बाद हो गया, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वट एवर द थिंग, डेथ कभी भी हो सकता है। सर अभी क्या करेंगे? तो डेथ इज ऑल्सो लाइक, अभी डेथ हो गया, एक पार्टनर का डेथ हो गया, अभी क्या हो गया, तो ए बी सी आर देयर। अभी इसको क्या करेंगे, सी को मारेंगे। अभी सी को मार दिया हम, सी का डेथ हो गया 30 जुलाई, 30 जुलाई को हुआ, तो 31 जुलाई को नहीं है, ओनली 30 जुलाई को। अगर 31 जुलाई होता तो 3 महीने का पीरियड हो जाता आपका, लेकिन 30 जुलाई को हुआ, मतलब 2 मंथ्स 29 डेज, 2 मंथ्स 30 डेज हुआ। तो 2 मंथ्स 30 डेज में उनका क्या हो गया, उनका डेथ हो गया। अभी क्या करेंगे? अभी जैसे रिटायरमेंट में क्या होता है, रिटायरमेंट में ये सी छोड़ के जाता है, हियर आल्सो अभी सी डेथ हो गया तो ये भी छोड़ के जाएगा ऑब्वियसली। अगर उनका डेथ हो गया तो व्हाट इट मींस, ऑब्वियसली इट इज आल्सो रिटायरमेंट, बट दैट इज विलिंगली, इट इज अनविलिंगली। ठीक है। अगर किसी का डेथ हो जाता फिर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है? अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए पहले आपको रिटायरमेंट या डेथ का जो भी रेगुलेशंस होता है वो सारे आपका पार्टनरशिप डीड में लिखे रहते हैं। किसमें? पार्टनरशिप डीड में उन्होंने साफ साफ लिखते हैं कि अगर मैं रिटायर करता हूं मुझे ये चाहिए, अगर मेरा डेथ हो गया तो मेरा जो भी रिटायरमेंट का वो भी बेनिफिट आता है, मेरा मेरा वाइफ को दे दो या मेरा बच्चे को दे दो, जो भी आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है ना उसको दे दो, जो भी। तो यहाँ पे जो भी आपका रिटायरमेंट के बाद, सॉरी इसके डेथ के बाद जो भी आपको प्रॉफिट या नुकसान जो भी होता है वो सारे आपको आपका लीगल हेड्स को देगा। किसको देगा? एज पर योर पार्टनरशिप डीड इट विल बी गिविंग टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हेड्स या लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसको देगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देगा। इनडायरेक्टली एक डेथ को मान जाएंगे हम रिटायरमेंट। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे कि जैसे एक आदमी ने रिटायर कर लिया तो वैसे ही ऑब्वियसली सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो रिटायरमेंट में क्या क्या चाहिए आपको? तो रिटायरमेंट में आपको चाहिए फर्स्ट रेशियोज, विच रेशियोज? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। फिर इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ योर गुडविल, नेक्स्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बाद Reserves and रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर इसके बाद आपको रिजर्व्स, नेक्स्ट सेटलमेंट। ठीक है। अभी थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पीएसआर कैलकुलेट करने के टाइम में आपको यूजुअली क्या होता है, गेनिंग रेशियो होता है। गेनिंग रेशियो होता है, कैसे होता है सर गेनिंग रेशियो कैसे होता है? बिकॉज दैट पर्सन इज गेटिंग रिटायर्ड, है कि नहीं? अभी उनको हमने गेनिंग रेशियो में क्या क्या देना है उनको। सो अगर आपको सेटलमेंट करना है एक अकाउंट को, अभी जो डेथ हो गया उसको क्या क्या देना है, आपको देना पड़ता है उसका कैपिटल, उनका कैपिटल तो उनको देना है। सेकंड थिंग, उनका जो भी पार्ट ऑफ गुडविल होता, उनका जो भी पार्ट ऑफ गुडविल होता दैट विल यू हैव टू गिव
फिर इसके बाद और क्या देना पड़ता है, अगर उनको कुछ सैलरी पे कर रहा था तो सैलरी फॉर पेंडिंग, तो पेंडिंग मंथ्स, जो भी पेंडिंग मंथ्स का सैलरी है तो वो भी। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इसके बाद क्या रिकवर करेगा, रिकवर योर ड्राइंग्स, मतलब उसको रिकवर ड्राइंग्स, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर इसके बाद जो भी आपने रिवैल्यूएशन किया उसका प्रॉफिट को भी देना पड़ता है, तो रिवैल्यूएटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, और उनका लॉस भी होता वो भी देना पड़ता है। फिर इसके बाद जो भी आपके पास रिजर्व्स है, बिकॉज ही इज द ओल्ड पार्टनर, दिस रिजर्व्स विल बिकम asset of this person also, so what we will do, we will give the reserves also. But eighth one very very important, स्टार मार्क लगा लेना इसको, जो भी उनका अगर मान लो अभी फर्स्ट अप्रैल को 2021 को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, अभी उनका डेथ हो गया 31 जुलाई। तो जो भी 3 मंथ्स है ना, 3 मंथ्स में भी कुछ बिजनेस किया होगा उन्होंने, 3 मंथ्स में भी कुछ बिजनेस किया होगा। अगर 3 मंथ्स का बिजनेस किया है तो उसमें भी उनको प्रॉफिट आया होगा, है कि नहीं? अगर उन्होंने 3 महीने का बिजनेस करता उनको प्रॉफिट आता है कि नहीं आता? सो वी विल कैलकुलेट व्हाट इज द प्रॉफिट अमाउंट दे अर्न ड्यूरिंग दिस 3 मंथ्स एंड देन वी विल सी, वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट टू द ओल्ड पार्टनर्स, जो भी इनका हिस्सा है वो भी देना पड़ता है, ठीक है? So profit of current year, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका कैलकुलेशन करना पड़ता है आपको। तो आपको प्रॉफिट दिया होगा यहां तक, कब तक? तो 31 मार्च 2021 तक दिया होगा, बट ये जो 3 महीने का जो प्रॉफिट है ना आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है? आपको बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम आपको करना पड़ता है। तो कैसे सर, कैसे करेंगे? तो आपके इच्छा से तो मारेगा नहीं, सीएमए ने मारेगा। अभी जो भी पार्टनर को अभी मारना है, कौन मारेगा? इंस्टीट्यूट ने मारेगा। अभी इंस्टीट्यूट ने बोलेगा कि 30 सितंबर को मारो, तो उस टाइम में हमको मारना है हमको, ठीक है? अगर 30 सितंबर को मार लिया आपने, क्या हो गया? 6 मंथ्स का प्रॉफिट आती है। इंस्टीट्यूट बोलेगा कि 31 जुलाई को मारो, तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट आती है, ठीक है? कौन मारेगा? अभी ओनली इंस्टीट्यूट कैन किल द पर्सन, ठीक है? फिर इसके बाद जो भी 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है उसको अभी हम कैसे निकालेंगे? अगर उन्होंने प्रॉब्लम में दिया कि ऐसे ऐसे निकालना है तो आपने उस तरीके से निकालेगा। अगर कुछ नहीं देता, सो देयर आर 2 मेथड्स टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स। सो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर। एक मेथड है आपको साफ साफ P&L का बैलेंस दिया होगा, प्रॉफिट और लॉस, जैसे आपका सेल्स एवरीथिंग विल बी गिवन, सो उनको प्रॉफिट इतना होगा ऐसे करके दिया है बेस्ड ऑन टाइम बेसिस, इसको बोलता है टाइम बेसिस। अगर टाइम बेसिस में 6 महीने में 6 मंथ्स में इतना प्रॉफिट हो गया करके लमसम देता है, देन यू विल कैलकुलेट बेस्ड ऑन योर टाइम। अगर उन्होंने नहीं देगा तो टर्नओवर के बेसिस में देता। तो ये टर्नओवर बेसिस क्या होता है? तो आपके पास पिछले साल में मान लो 1 लाख प्रॉफिट हो गया, आपने सेल्स टर्नओवर सेल कितना किया? 10 लाख किया, मान लो आपको 10 लाख टर्नओवर क्रिएट किया, आपने सेल किया था, आपका रेवेन्यू कितना है? 10 लाख, बट यू हैव अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? अभी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज
ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स into 100, right? So 1 lakh divided by 10 lakhs into 100. How much percentage you will get? 10% gross profit you will get. Here on turnover basis में उन्होंने बोलेगा कि पिछले 3 महीने का 3 मंथ्स का टर्नओवर इतना था, 3 मंथ्स में इतना, 3 मंथ्स में इतना सेल किया। हम कितना सेल किया? मान लो 4 लाख सेल किया था, 3 मंथ्स में आपने 4 लाख सेल किया। अगर 4 लाख सेल करता, आपका प्रॉफिट कितना होता है? यहाँ पे प्रॉफिट कितना बनता? इस 10% को यहाँ पे लेके आने हैं, बिकॉज 4 लाख इंटू 10% कितना आ गया? 40,000 इन द प्रॉफिट निकल गया। किसका? करंट ईयर का। सो करंट ईयर का प्रॉफिट ऐसे निकल जाते हैं टर्नओवर बेसिस में। टर्नओवर बेसिस में कैसे निकलता? लास्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट आया है, लास्ट ईयर का जो भी सेल हुआ, सो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, यू विल गेट ए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दैट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इस साल का जो भी सेल्स है, टर्नओवर दिया हुआ है, उससे मल्टीप्लाई करो, आपको इस साल का ग्रॉस मिल जाएगी। इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट मिलने के बाद अभी 3 लोगों को बांट लेना, तो ये बी सी, इन तीनों को बांट लेना। अभी मान लो कि 1:1:2, तो एक का 10,000 आ जाएगा, इसका 10,000 आ जाएगा और इसका 20,000 आ जाएगा। तो इस 20,000 को आपने क्या करना है? इस 20,000 को उनका कैपिटल अकाउंट में देना है, उनको सेटल करना है। ठीक है? अंडरस्टूड और नॉट? आगे बढ़े? Yes, sir. यस। नेक्स्ट, यहाँ पे अभी वी आर सीइंग 8 टाइप्स कि उनका कैपिटल देना पड़ता है आपको, और उनका पार्ट ऑफ गुडविल भी देना है। एंड देन अगर उनको कुछ सैलरी या इंटरेस्ट ऑन सैलरी होता है, उनको पे नहीं किया, वो भी देना पड़ता है। और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो वो भी देना पड़ता है। अगर उन्होंने कुछ ड्राइंग्स किया है, उसको रिकवर करने हैं। अगर उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, उसको भी रिकवर करना है आपको। फिर इसके बाद आपको जो भी रिवैल्यूएशन करने के बाद आपके प्रॉफिट और लॉस होता, तो उसको भी हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। देन if you have any reserves, you have to distribute it to the old partnership, old ratio. Now you have to calculate profits of current year. ठीक है? ये प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर करने के बाद इसको कैसे देना है? उनको जो ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो में उनको देना है। ठीक है? नेक्स्ट, यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये सारे हमने देख लिया। सो ओनली हियर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज प्रॉफिट्स ऑफ द करंट ईयर कैसे निकालना है, उतना ही है। Main, very important, which is the differentiation between your retirement and your death. So only differentiation is retirement will happen at the end of the year, but death can happen at any time. जो भी बीच में वो डेथ हो जाता, उस पीरियड का प्रॉफिट जो भी निकलता, उस प्रॉफिट को हमने ये आदमी को देना पड़ता है जो डेथ हो गया। अभी इसका पेमेंट कैसे करेंगे? अभी तो हमने सारे कैलकुलेट किया, उसका अकाउंट आ गया, उसका पेमेंट कैसे करेंगे? देयर आर 2 मेथड्स। वन थिंग इज लंप सम मेथड। लंप सम मेथड मतलब क्या? आपने कैलकुलेट किया 10 लाख आ रहे हैं, उनको देना है, तो व्हाट यू विल डू? यू विल गिव द 10 lakhs टू द लीगल हेड्स ऑफ दैट पार्टनर। आपने बोलेगा कि ये 10 लाख है, पूरा लंप सम लेके आएगा, ये 10 लाख लेके आके उनको दे देगा। दैट्स इट, योर काम खत्म। फिर इसके बाद सेकंड बनता, आपने एज ए लोन देता है। एज ए लोन क्या है? अभी जो भी, मान लो अभी आपका 10 लाख पे करना है पार्टनर को। किस पार्टनर को? जो डेथ हो गया, जिसका डेथ हुआ, उस पार्टनर को आपने 10 लाख पे करना पड़ता है। इस 10 लाख को हमने क्रेडिट करेंगे टू अ पार्टनर्स लोन अकाउंट। टू अ पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसको अभी लायबिलिटी में खड़ा कर देगा। अभी जो भी पार्टनर है, पार्टनर का लोन अकाउंट में हम उसका बैलेंस को खड़ा करेंगे। खड़ा करने के बाद व्हाट वी विल डू? वी विल पे इंटरेस्ट ऑन दिस, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। कैसे? ऑन इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट
और इक्वेटेड ईयरली इंस्टॉलमेंट जो भी है उसको टर्म्स एंड कंडीशन में क्या क्या लिखा हुआ है, उनका अग्रीमेंट में जो लिखा है उस हिसाब से हमने क्या करेंगे, उसका लोन को सेटलमेंट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू गिव ऑन लंप सम, सेकंड थिंग इज एज ए लोन यू हैव टू पे इट टू द पार्टनर। डन। नाउ सो यहाँ पे क्या है, आपको डेथ ऑफ ए पार्टनर में एक ही प्रॉब्लम दिया हुआ है, सो वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। सो फिर से एक बार रिकैप करना है आप लोगों के लिए, रिकैप करना है हमको, एक बार फिर से रिकैप करेंगे। ठीक है, फर्स्ट से सो वी आर डूइंग पार्टनरशिप अकाउंट्स। क्या है ना, मैंने पूरा घूम के ना थक गया था तो कल सुबह आया, कल रेस्ट कर लिया, फिर भी थोड़ा ड्राउजी है, कोई बात नहीं। चलो, तो admission of a partner, we have seen admission of a partner, we have seen retirement of a partner, and now we are coming to the death of a partner. Okay, so in admission of a partner there are two or more existing partners are there, one more person is adding to that, so there is a admission. When there are three or more partners, one person is leaving the firm, then it is called a retirement of a partnership firm. So there are different types of steps, like calculating the PSR, valuation of your goodwill, and then valuation of your reserves, and then distribution of reserves, and then revaluation of your assets, and then settlement of your capital, and then your capital accounts. So capital accounts के बाद जो भी final accounts बनेगा वो सारे बनेंगे। But the thing is, we don't know when the partner will die. So इस डेथ ऑफ पार्टनर को बोलता है, ये पार्टनर को बोलता है डिसीज्ड पार्टनर। इसको जो डेथ हुआ ना, जिस पर्सन का डेथ हो गया उनको बोलता है हमने डिसीज्ड पार्टनर। ठीक है, किसको बोलता है डिसीज्ड पार्टनर? इसको बोलता है कि वो जब जिसका डेथ हो गया उसको बोलता है डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड मतलब गया। ठीक है, सो हियर द कॉन्सेप्ट इज जस्ट सिमिलर एज योर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, but only additional thing here comes in your death of a partnership firm is, death of a partner is calculating the profit of the current year, the profits of current year, and we will distribute it to the old partners on their ratio. तो जो भी आता है उसको अभी हमने कैलकुलेट करना पड़ता है, जो भी रिटायरमेंट के टाइम में जो भी करना है, गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, रिजर्व्स, सारे same procedure, but the thing is you have to calculate the profits in that same ratio. ठीक है, so इसके बाद जो भी पे करना पड़ता है, जो भी अगर मान लो उसको कैपिटल अकाउंट्स को सेटल करना है, तो उसका कैपिटल अकाउंट को सेटल करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल पे इन लंप सम और वी विल पे इन a loan account, we will credit it to a loan account so that we will pay in a different installments. Okay, so we will go on with the problem. Only one problem is there, so we will start with we will go with that. So we will try to solve that problem. अगर टाइम नहीं बचेंगे तो फिर मैंने बोलूंगा कैसे करना है। ठीक है, चलो। अच्छा, डेथ ऑफ ए पार्टनर, सो पेज नंबर 327. The total amount payable includes the deceased partner's capital account, his share of undistributed profit or loss. Undistributed profit or loss मतलब करंट ईयर का जो भी प्रॉफिट और लॉस है, his share of revaluation profit or loss, his share of goodwill, his share of joint life policy. joint life policy JLP बोलते हैं, अगर उन्होंने कुछ joint life policy लिया होगा, जैसे आपका डेथ के लिए या कुछ चीज के लिए उन्होंने लाइफ पॉलिसी लिया होगा, क्या होता है ना, 3-4 पार्टनर होते हैं, 3-4 पार्टनर होके उनको सारे, अगर उनका डेथ हो जाता है तो उनको जैसे आपका LIC होता है ना, वैसे एक लाइफ पॉलिसी लेता है, तो तीनों मिलके फर्म पे करते हैं इसका इंस्टॉलमेंट। जो भी डेथ होता है ना उनका सब मतलब मैच्योर हो जाती है, वो अभी हम क्या कर सकते हैं, सो वी कैन विथड्रॉ दैट अमाउंट। ठीक है, जो प्रीमियम पे करता है कौन पे करता है, पार्टनरशिप फर्म पे करती है। बट अगर फर्म का जो भी पार्टनर डिसीज्ड होता तो वो पार्टनर के लिए ये सम एश्योर्ड है। ठीक है, नाउ his share of profit or loss made by the firm between the last year ending. अच्छा, जो भी लास्ट ईयर का फर्स्ट सेकंड पॉइंट में बोला, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस वो बोलता है आपको रिजर्व्स, एंड लास्ट में बोला
कि जो भी प्रॉफिट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द फर्म बिटवीन लास्ट ईयर एंडिंग एंड हिज द डेट ऑफ हिज डेथ। ठीक है, नाउ द अकाउंटिंग प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इन ए सिमिलर to that followed in case of retirement of a partner. The mode of payment depends on the agreement between the partners. It may be a lump sum payment, it may be an installed payment or loan payment. ठीक है, so we will continue with the problem. Illustration 25, page number 327. The following was the balance sheet of A, B and C who shared profits in the ratio of 1:2, 1/2. ठीक है, कौन कौन, ए बी सी, तीन पार्टनर्स हैं, 1/2. ठीक है, नाउ ऑन 31 दिसंबर 2012 इन्होंने क्या दिया, 31 दिसंबर 2012 दिया, मतलब ही इज फॉलोइंग ए कैलेंडर ईयर। ध्यान से सुनिएगा, सो ही इज फॉलोइंग ए कैलेंडर ईयर बिकॉज 31 दिसंबर 2012 को अकाउंट्स क्लोज किया, 31 दिसंबर को क्लोज किया, मतलब ही इज फॉलोइंग ए कैलेंडर ईयर। नाउ goodwill is already there, but we will see how whether it was a properly calculated or not. Debtors is there 10,000 and machinery account was given 20,000, building was given 30,000, stock was given 10,000 and cash at the bank is there, investments are there 10,000. Very good. Next, sundry creditors are there, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है 10,000, 20,000 एंड 20,000। सो 1:2 में प्रॉपरली है कि 10,000 लाया, 20,000 लाया, 20,000 लाया इन्होंने, ठीक है। एंड नेक्स्ट, जनरल रिजर्व, व्हाट वी विल डू विद जनरल रिजर्व, वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट टू द पार्टनर्स। एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसको भी हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के लिए, अगर इन्वेस्टमेंट जो भी है ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 10,000, उसका फ्लक्चुएशन के लिए कुछ फंड लेके रखा है, दिस इज आल्सो ए रिजर्व, सो वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट। बैड डेट्स रिजर्व को हम एडजस्ट कर लेते हैं डेटास के साथ, अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो हम इसको भी रिजर्व मान के हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बैंक लोन वाज गिवन 30,000, दिस इज ए करंट लायबिलिटी और मे बी बैंक लोन, अगर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होता तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ऊपर से नीचे दिया है, मतलब ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो सकता है। नाउ सी डाइड ऑन 31 मार्च 2013, बाप रे, टाइम देख के गया ये, 31 मार्च 2013 को, कब अकाउंट्स क्लोज हो गया 31 दिसंबर 2012 को, लेकिन इन्होंने गया, मतलब ही वाज डिसीज्ड ऑन 31 मार्च 2013। ठीक है, यहाँ पे कितने महीने का टाइम है, 3 months. 3 मंथ्स। सो हम ये 3 महीने का अभी प्रॉफिट्स निकालना है। ठीक है, ये 3 महीने का अभी हमको क्या करना है, प्रॉफिट्स निकालना है पूरा। नाउ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड, अच्छा ऑलरेडी उन्होंने जो गुडविल दिया उस गुडविल नहीं है, अभी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना गुडविल होना चाहिए वो देख लेते हैं। नाउ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 2 years purchased on the basis of the average of 5 years profit or loss। क्या दिया इन्होंने, सो फर्स्ट एडजस्टमेंट विल बी योर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कुछ एवरेज प्रॉफिट्स आ सकता है यहाँ पे, उसका 2 years परचेज, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ, एवरेज प्रॉफिट्स कितने साल का, 5 साल का, 5 years एवरेज प्रॉफिट्स है, उसका 2 years परचेज के साथ आपने जो भी कैलकुलेट करेगा वो गुडविल बन जाएगा। नाउ for the January to March 13 is to be calculated, profit for the January to March 13 is to be calculated proportionately on average profit of 3 years। देखो अभी 3 years का प्रॉफिट दिया हुआ है, लास्ट 3 years का, उसका प्रोपोर्शनेट बेसिस में है, प्रोपोर्शनेट, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस में मतलब टाइम बाउंड में, लास्ट 3 years का जो भी प्रॉफिट है उसका प्रोपोर्शनेट बेसिस में आपको 3 महीने का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, नाउ प्रॉफिट्स वर द प्रॉफिट्स गिवन फॉर 2008 एज 3,000, 9 7,000, 10
10,000, 11, 14,000, 2012 में लॉस आया इनको 12,000 का, ठीक है। ड्यूरिंग 2012 ए मोप्ड कॉस्टिंग 4,000 वाज परचेज्ड। मोप्ड का क्या मतलब है पता है किसी को? मोपेड भी बोल सकते हैं इसको, मोपेड। आपने सुना होगा कि लूना सुना, एक्सेल 100, टीवीएस एक्सेल, जिसके साथ क्या होता है ना, ये एक स्कूटर जैसे रहती है, उसका पेडल भी रहती है, ठीक है। अगर वो बंद हो गया तो फिर हम साइकिल जैसे चला के जा सकते थे, बचपन में रहते थे, देखा होगा आपने, देखा कि नहीं? देखा है स्कूटर, हाँ स्कूटर जैसे रहती है, उसको क्या है ना, अगर वो बंद हो गया तो आप साइकिल जैसे वो चला के जा सकते थे, उसको बोलता आप मोपेड, ठीक है। वो एक स्कूटर है, मान लो कि ये एक स्कूटर है, मोपेड नहीं है, स्कूटर है, ठीक है। चलो नाउ ड्यूरिंग 2012 ए मोपेड कॉस्टिंग 4,000 वर परचेज्ड। अच्छा 4,000 में मिल गए इनको मोपेड, बढ़िया है। 4,000 में अभी तो साइकिल भी नहीं आ रही है, उनको मोपेड आ गया। नाउ एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर। बाप रे, उन्होंने इतना बढ़िया कांड किया है, इसको कैपिटलाइज नहीं किया उन्होंने, क्या किया, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर को डाला। अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर को करता क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर को करता? तो अगर ये कैपिटलाइज कर देता, इट विल बी कमिंग इन असेट अकाउंट। इन्होंने अभी ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर किया, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग कैपिटल अकाउंट ही हैज डन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन्होंने क्या किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया था। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता तो क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो अभी एक्सपेंडिचर किस साइड में आता, इस साइड में आ जाता। उन्होंने क्या किया, 4,000 यहाँ पे एंट्री किया था। एंट्री करने के बाद क्या हो गया, आपका प्रॉफिट कम हो गया। अभी क्या करेंगे, इस 4,000 को हमने ऐड करेंगे इस बार। क्या प्रॉफिट, किस प्रॉफिट है, आपको एक लॉस दिया हुआ है 12,000 का, उसको हमने ऐड करेंगे 4,000, सो दैट माय प्रॉफिट विल बिकम -8,000। प्रॉफिट नहीं है, लॉस अभी थोड़ा घट जाएगी। कितना घटेगी, जिसका आपने 4,000 को एक्चुअली वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था ही नहीं, लेकिन आपने क्या किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाला, सो दैट माय प्रॉफिट विल बी डिक्रीज्ड। व्हाट आई विल डू, व्हाई I will do, so I will add this 4,000 in my profit and loss account and I will take this account to the capital expenditure and capitalize the asset. Asset को हमने capitalize करेंगे, ठीक है। Now debited to travel expenses account on which depreciation is to be calculated 25%। अभी इसके ऊपर डिप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसका ऊपर कितना, 4,000 के ऊपर 25% कितना डिप्रिसिएशन बनता, depreciation 4,000 into 25%, how much value? 1,000 could be your depreciation। ये 1,000 कहाँ पे आता है, 1,000 कहाँ पे आता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। समझ में आएगी नहीं आए तो फिर से एक बार बताएंगे। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें क्या किया, उनको लॉस दिख रहा था। लॉस मतलब किस साइड में होगा, लॉस मतलब किस साइड में होगा, इस साइड में या इस साइड में, इस साइड में होगा, राइट, ठीक है। लॉस कितना दिख रहा था, 12,000 दिख रहा था। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक कांड किया कि 4,000 को यहाँ पे उन्होंने डेबिट किया था। एक्चुअली दिस वाज नॉट ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 4,000 किया था। कैसे किया, उसमें अभी यहाँ से क्रेडिट से उसको डेबिट करने के बाद आपको रिड्यूस हो गया, ताकि आपका लॉस कितना बन गया, 12,000 बन गया, लेकिन आपको इसमें आना ही नहीं चाहिए था। तो व्हाट वी विल डू, वी विल एडजस्ट अवर प्रॉफिट, वी विल एडजस्ट अवर प्रॉफिट। व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड दिस 12,000। पहले मेरा लॉस कितना था, 12,000 था,
अभी मैंने ऐड करूंगा मेरा 4000 जो भी मैंने माइनस किया उससे, उसको मैंने ऐड करूंगा। मेरा प्रॉफिट और लॉस में अभी एक्चुअल लॉस होगा मेरा 8000 होगा, लेकिन मैंने अभी बुक्स में कितना दिखा रहा था, बिकॉज ऑफ दिस एंट्री आई एम शोइंग 12000 लॉस, बट एक्चुअल लॉस वाज 8000 मैंने इसमें दिखाया। फिर इसके बाद उन्होंने बोला 25% इस 4000 को अभी क्या करूंगा, मैंने कैपिटलाइज करूंगा। इस 4000 को कैपिटलाइज करने के बाद क्या हो जाता है, कैपिटल असेट बन जाएगी। अभी मोपेड एक असेट बन गया। इस असेट को अभी इन्होंने क्या किया, 25% डिप्रिशिएशन किया था। डिप्रिशिएशन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन डिप्रिशिएशन कहाँ आता है, डिप्रिशिएशन तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट साइड में आता है। तो यहाँ पे 4000 नहीं आना चाहिए, लेकिन 1000 आना तो चाहिए, ठीक है। सो इसीलिए मैंने क्या करूंगा, और एक 1000 को मैंने लेस करूंगा यहां से। अभी मेरा लॉस बन गया, अल्टीमेटली मेरा लॉस बन गया 9000। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया अभी? डन, बोलिए बोलिए कुछ। सर डेप्रिसिएशन वाला मुझे डेप्रिसिएशन अभी देखो, मेरा असेट कितने का, 4000। इसके ऊपर उन्होंने क्या बोला कि 25% डिप्रिसिएशन करना है, ठीक है। 25% कितना बनता है यहाँ पे, 1000। उन्होंने क्या किया है, पहले 4000 को ट्रैवल एक्सपेंडिचर में डाल दिया। अगर मैंने प्रॉपरली अकाउंटिंग करता, इसको क्या करता था मैंने इसको असेट करके उसको कैपिटलाइज करता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैवल एक्सपेंडिचर करके पीएनएल में डाल दिया। बट नाउ व्हाट आई विल डू, जो पीएनएल से मैंने निकाला था उसको ऐड करूंगा। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैंने असेट जैसे 2012 का अकाउंट्स को अभी फिर से बना रहा हूं मैंने। 2012 में जो भी लॉस प्रॉफिट और लॉस दिया है ना, उसको मैंने फिर से कर रहा हूं। तो मेरा अल्टीमेट यहाँ पे लॉस बन गया 8000। बट प्रॉब्लम ने और कुछ बोला कि इसके ऊपर डिप्रिसिएशन भी आना चाहिए था, कि अगर मैंने पहले ही 4000 को मैंने असेट बनाता था, अगर मान लो व्हेन आई कैपिटलाइज्ड इन अर्लियर, सो व्हाट आई विल डू, मैंने उसको डिप्रिसिएशन भी चार्ज करता था। डिप्रिसिएशन क्या है, डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंडिचर व्हिच विल कम इन योर पी&एल अकाउंट। पी&एल अकाउंट में किस साइड आता है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस और लॉसेस विल बी डेबिटेड, राइट। सो डिप्रिसिएशन आता आपको डेबिट साइड में, ठीक है। सो अगर इस साइड में क्रेडिट साइड में ज्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट बन जाएगा, लेकिन डेबिट साइड में ज्यादा होगा तो लॉस बनेगी। अभी इसको ये 1000 को आपने क्या करना है, माइनस करना है, किससे, जो भी आपको प्रॉफिट और लॉस आ गया, और थोड़ा आपको एक्सपेंडिचर बुक करना है अभी, और 1000 को बढ़ाना है, ठीक है। तो नाउ व्हाट विल हैपन, अगर मैंने क्या किया, और एक 1000 को मैंने ज्यादा एक्सपेंडिचर बुक कर लिया। अगर एक्सपेंडिचर बुक करने से मेरा लॉस हो जाता है तो अल्टीमेटली मेरा लॉस बन गया 9000। प्रॉब्लम यही है कि अगर मैंने पहले ही असेट को कैपिटलाइज करता, उसी टाइम में मैंने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करता था, लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम में डायरेक्टली ट्रैवल एक्सपेंडिचर डाल दिया, तो उन्होंने असेट नहीं डाला। तो अभी हमने क्या किया, उसको असेट को पहले लास्ट डेट में हम कैपिटलाइज किया है, कैपिटलाइज करके उसके ऊपर डिप्रिसिएशन जो भी होता उसको भी हमने कैलकुलेट करके फिर उसका इफेक्ट दिया है, यहाँ पे 1000 रुपीज नेगेटिव दिया, ठीक है। नाउ अल्टीमेटली मेरे 2012 का प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस ऑफ 9000। पहले कितना था, लॉस ऑफ 12000, लेकिन अभी मेरा लॉस कितना है, 9000, ठीक है। किसका, 2012 का। डन, चलो नेक्स्ट। नो, अदर वैल्यूज अग्रीड ऑन असेट्स आर स्टॉक 12000, पहले कितना था स्टॉक, 10000 था। इसको ये इंफॉर्मेशन को क्यों दिया, टू प्रिपेयर ए रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। सो टू प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट द वैल्यू ऑफ असेट्स वर गिवन, राइट। नाउ
तो अदर वैल्यूज अग्रीड ऑन असेट्स आर स्टॉक 12,000। सो 12,000 मतलब आपको कितना प्रॉफिट आया यहाँ पे, 2,000 का प्रॉफिट आया होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड में आता है ये, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, वेरी गुड। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे बाय स्टॉक 2,000, राइट। नाउ बिल्डिंग 35,000, सो पहले कितना था, 30,000 था, बाय बिल्डिंग 5,000, फिर इसके बाद मशीनरी अकाउंट 25,000, तो पहले मशीनरी कितना था, 20,000 था, बाय मशीनरी हाउ मच, 5,000। फिर इसके बाद एंड इन्वेस्टमेंट्स 8,000। सो इन्वेस्टमेंट्स कितना था, पहले 10,000 था, अभी बन गए 8,000, मतलब 2,000 इज योर लॉस। सो अभी टू इन्वेस्टमेंट्स कितना, 2,000, ठीक है। तो डेटास आर कंसिडर्ड गुड। डेटास आर कंसिडर्ड गुड का मतलब क्या है, तो जो भी डेटास का अभी बैड डेट्स रिजर्व है ना, वो रिजर्व रखने का जरूरत नहीं है, उसको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या हो गया, अभी मेरा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स होकर रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म हो गया, कितना बन गया यहाँ पे 10,000। अगर मान लो यहाँ पे 10,000, मैंने क्या करूंगा, इस 8,000 को मैंने किसको दे देता हूँ, टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियोस। ओल्ड रेशियो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ध्यान से देखिएगा, नाउ व्हाट हैपेंस हियर 2000 जो भी, अच्छा और एक यहाँ पे छूट गया, जो भी मोपेड है ना, मोपेड अभी पहले हम नहीं किया था, सो बाय मोपेड, बाय मोपेड कितना था, सो 3,000 था, ठीक है। सो क्योंकि हम पहले मोपेड को लाया ही नहीं। नेक्स्ट, फिर इसके बाद कितना आया यहाँ पे, सो 13,000, 3 + 5 15,000, तो 15,000 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा, राइट। 5 + 2 मतलब पहले हम 10 किया है, गलती किया है, सो 13,000 हो जाएगी। इस 13,000 को हमने क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे देते हैं, ठीक है, राइट। सो 5 5 5, तो 15,000 इसमें 2,000 गया, सो आपको 13,000 बच गया। इस 13,000 को हमने किस रेशियो में देना है, 1:2:2 या 1:1:2, 1:2:2। 2:2। तो यहाँ पे आपको पूछा गया, क्या क्या पूछा गया आपको, तो प्रिपेयर अ न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड लेजर एंट्रीज ऑफ द पार्टनर्स। सो जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगा, फर्स्ट एंट्री बनेगा असेट्स अकाउंट डेटा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना पूरा, ये कितना हुआ 15,000, राइट। जो असेट्स अकाउंट मतलब आपने ये सारे लिखना है। नेक्स्ट एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटा टू इन्वेस्टमेंट्स, हाउ मच, 2,000, राइट। नेक्स्ट एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटा टू ओल्ड पार्टनर्स, कितना अमाउंट, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटा टू ओल्ड पार्टनर्स, हाउ मच, 13,000। ओल्ड पार्टनर्स मतलब ऐसे नहीं है कि ए बी सी लिखना होगा, ठीक है। 3 एंट्री बन गया। नाउ देयर आर 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वर्किंग नोट, एक है आपका गुडविल कैलकुलेट करना, दूसरा है आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करना फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। सो गुडविल आपको कितना बोला कि
5 years average into 2 years purchase. ठीक है, 2 years purchase of average profits of 5 years. ठीक है, सो 5 years एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे. सो फर्स्ट थिंग इज एवरेज प्रॉफिट्स. एवरेज प्रॉफिट्स कितने साल का? सो 5 साल का. 5 साल का कितना कितना बताइए फटाफट. सो 2008 का 3000 प्लस 9 का 7000 प्लस 10 का 10,000 प्लस 11 का 14, 12 का हमने कैलकुलेट किया 12,000 से 3,000 निकाल के जो 9,000 आया वो 9,000 लॉस. जैसे है, अगर प्रॉफिट नहीं होने से भी लॉस होने से भी हमको लेना ही पड़ेगा. डिवाइड बाय कितना, हाउ मच? डिवाइड बाय 3 years. 5 बिकॉज 5 years का एवरेज प्रॉफिट्स ले रहा है. 3 + 7 10, 10 + 10 20, 20 + 24 34, 34 minus 9,000 is 25,000. So 25,000 divided by 5,000. तो आपका सॉरी 5 ना, डिवाइड बाय 5, तो आपका एवरेज प्रॉफिट बन गया 5,000. ठीक है. अल्टीमेटली आपका गुडविल कितना बोला? 2 years परचेज ऑफ योर एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 5 years. सो गुडविल कैलकुलेशन में, सो गुडविल बनेगा अभी 5,000 into 2, 10,000 is my गुडविल. समझ में आया कि नहीं आया? गुडविल को कैसे वैल्यूएट करेंगे? सो फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड. एवरेज प्रॉफिट्स में कितना साल का प्रॉफिट दिया है? सो दे हैव गिवन 5 years प्रॉफिट. उन्होंने बोला 5 years का एवरेज प्रॉफिट निकालो, उसके बाद 2 years का परचेज करके, सो 2 years होगा इसका वैल्यूएशन. तो ऐसे करके प्रॉफिट निकालने के लिए बोला, गुडविल निकालने के लिए बोला. सो वी हैव कैलकुलेटेड द गुडविल एज 10,000. बट ध्यान से देखिएगा एक बार, आपका बैलेंस शीट में कितना दिया है. तो बैलेंस शीट में दिया था 15,000, बट आपका फर्म का वैल्यूएशन कितना बना? 10,000 बना था. तो जो भी 5,000 का डिफरेंस है ना, जो भी 5,000 का डिफरेंस है ना, ये ओल्ड पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है. सो ये ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अभी इस 10,000 को क्या करना है? इस 10,000 को हमने बुक्स में तो नहीं रखना है, तो दिस डज नॉट बिलोंग टू सी आल्सो. सो इसको क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. इसको क्या करेंगे? ये 10,000 को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को राइट ऑफ करेंगे. कैसे करेंगे? जो भी नया रेशियो आते हैं ना, उसका उस रेशियो में से हमको अभी उनको राइट ऑफ करेंगे. ठीक है. चलो, नाउ नेक्स्ट थिंग इज गुडविल के बाद तो शेयर ऑफ प्रॉफिट. फर्स्ट गुडविल हो गया, तो सेकंड एडजस्टमेंट इज योर शेयर ऑफ प्रॉफिट. शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 मेथड्स आर देयर. वन मेथड इज टाइम मेथड. अगर उन्होंने बोलता कि इस टाइम से इस टाइम तक इतना प्रॉफिट है, उन्होंने बोलेगा कि प्रॉपरली ऐसे करना है, वैसे करेंगे. अगर उन्होंने बोला कि टर्नओवर मेथड, अगर उन्होंने बोलता है कि टर्नओवर बेसिस में आपको गुड प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, सो बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर. लेकिन यहाँ पे बोला टाइम मेथड. सो कितना बोला? सो द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर टिल डेट. तो एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 3 years बोला उन्होंने. एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 3 years, लास्ट 3 years कौन सी है?
2010, 2011 एंड 2012। ठीक है, पहले एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 3 इयर्स ले लेते हैं। 2010 का प्रॉफिट कितना, सो 10,000 प्लस 11 का 14,000, फिर इसके बाद हमको 12 का हमने कैलकुलेट किया -9,000। इस 3 इयर्स का प्रॉफिट बाई 3, so 10 plus 14 is 25, 24 minus 9,000 is 15,000, 15,000 डिवाइड बाई 3, आपका एवरेज प्रॉफिट्स हो गया 5,000। लेकिन टाइम कितना था, सो आपका एवरेज प्रॉफिट बनता था नॉर्मली इस साल में आपको, अगर 3 साल का प्रॉफिट के हिसाब से आप एवरेज लेता, इस साल आपको प्रॉफिट 5,000 आ जाता था। ठीक है, बट इन्होंने रहा कितने महीने के लिए, सो 3 मंथ्स डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो हाउ मच, 1250। सो इसका प्रॉफिट अभी बनेगा, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1250 रुपीज। 1250 के लिए 1 साल काम कर रहे हैं ये लोग, मतलब 3 महीने काम कर रहे हैं। ठीक है, ये 1250 को हमने कैसे कैलकुलेट करना है अभी, तो उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट को उनको देना है। किसको देना है, सी को देना है। कितना आ जाएगा, 1250 इंटू उनका शेयर कितना है 2/5, हाउ मच, हाउ मच, 5, 550, 5, 5, 2, 5, 250 into 2 is 500। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, फिर से बताना है, बोलिए बोलिए फटाफट, टाइम नहीं है। सर ये बोलिए, 1250 तो ABC का प्रॉफिट है। हाँ, एबीसी का प्रॉफिट है, मतलब अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑफ फर्म निकाल रहे हैं। तो प्रॉफिट ऑफ फर्म पर 3 मंथ्स, कब से, सो 1/1/2013 से लेकर 31 मार्च 2013 तक। तो जो 3 महीने का फर्म है ना, 3 मंथ्स का, ये 3 मंथ्स का प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं। ठीक है, 3 महीने का प्रॉफिट अब पूरा फर्म का निकाल रहे हैं बेस्ड ऑन लास्ट 3 इयर्स का जो भी प्रॉफिट आया है उसका एवरेज अभी ले लो, इस साल का प्रॉफिट बनेगी। ठीक है, लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट 15,000 थे, उसका एवरेज ले लिया मैंने 3 साल का, तो मेरा इस साल का संभावना है, मतलब मेरा अजम्पशन है कि इस साल में मुझे प्रॉफिट 5,000 आता था। अगर मैंने लास्ट ईयर का एवरेज लेके करता तो मुझे इस साल प्रॉफिट 5,000 आता था। लेकिन ये 5,000 किसके लिए, पूरा साल के लिए, मतलब टोटल ईयर का। लेकिन अभी हुआ कितने महीने, ओनली 3 मंथ्स हुआ था। तो इस 3 महीने का कितना हो सकता, तो इंटू 3/12, तो मेरा 12 महीने के लिए 5,000 है, तो 3 महीने के लिए कितना हो सकता, सो 5,000 इंटू 3/12, मेरा प्रॉफिट ऑफ फर्म बन गया 1250। ठीक है, मेरा प्रॉफिट ऑफ फर्म बन गया 1250, पूरा तीनों पार्टनर का मिला के 1:2:2, ये तीनों मिला के, ये तीनों पार्टनर्स का अभी ये 3 महीने का प्रॉफिट हो गया। मेरा अजम्पशन ये कि 1250 बनेगी। ठीक है, इस 1250 में अभी जो डिसीज हुआ था, वो जो मर गया था, उनको अभी हम प्रॉफिट देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उनका प्रॉफिट को हम क्या करेंगे रख के, तो उनको प्रॉफिट को अभी सेटल करेंगे। तो उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा 2 डिवाइड बाई 2/5, ठीक है ना, 2 डिवाइड बाई 5, 1 + 2 + 2 is 5। ठीक है, तो उनका प्रॉफिट बनेगी अभी 500। तो ये 500 हमको उनको अभी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको, जो डिसीज्ड पार्टनर है सी को हमने क्या करेंगे, अभी उनका प्रॉफिट उनको दे देते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज योर गुडविल, गुडविल का आप जो भी 5,000 आया था उसको प्रॉफिट वो पहले ओल्ड कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स को दे दीजिए, क्योंकि अभी वो असेट है। वो असेट देने के बाद जो भी 10,000 का गुडविल होना चाहिए था वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को दे दो। फिर इसके बाद जो भी प्रॉफिट ऑफ सी है वो सी का प्रॉफिट उनको दे दीजिए। नाउ यहाँ पे अभी क्या बन सकता है आपका, एंट्रीज देख लीजिए एक बार।
सो हाँ, यहाँ पे जो भी 500 है ना, ये 500 को अभी P&L सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। सो अभी मैंने बताया आप लोगों के लिए जो भी प्रॉफिट आता है, अगर उन्होंने प्रॉब्लम में बताया कि ऐसे करना है, आपने न्यू रेशियो दिया होगा उनको, सो आपको न्यू रेशियो दिया होगा, तो आपने क्या बोलेगा, अब इनको करेगा। सो नाउ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी, तो पहले मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बताया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुड बी, सो जो न्यू पार्टनर्स होता, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होता, टू सो ओल्ड पार्टनर्स, otherwise gaining ratio account debit to sacrificing ratio, ये एंट्री बनती है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर उन्होंने कुछ नहीं दिया कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, न्यू रेशियो नहीं दिया, चेंज नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, आपने क्या करेंगे, एक P&L सस्पेंस अकाउंट को खोलेंगे, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर। अभी उनका जो भी 500 है ना, उस 500 को उनको अभी हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो इसलिए सेकंड रूल ले लेते। अगर उन्होंने न्यू रेशियो देता, उनको गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो करता था, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिया, सो दैट इज व्हाई वी विल टेक P&L सस्पेंस अकाउंट डेटा टू द डिसीज्ड पार्टनर अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, और गुडविल अकाउंट में भी यहाँ पे 5000 जो भी दिया है, सो फर्स्ट से यहाँ से आते हैं, तो जनरल एंट्रीज में आ जाइए, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी एंड मोपेड, सो उसका 15,000 हमने दे दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर इसके बाद रिजर्व्स का अभी एक एंट्री नहीं बना, तो रिजर्व्स को भी आपने क्या करना है, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सो थर्ड वन इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो भी 2000 का लॉस हो गया उसको। फिर इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटा टू कैपिटल अकाउंट्स, ये ऑलरेडी बताया, जो 13,000 का डिफरेंस आ रहा था, प्रॉफिट आ रहा था, उनको अब 1:2 में उनको बांट लीजिए। फिर इसके बाद जो भी गुडविल अकाउंट है ना, गुडविल 5000 का, ये 5000 बिलोंग्स टू किसका, ओल्ड पार्टनर्स का। सो उसको क्या करेंगे, अभी राइट ऑफ करेंगे। तो उसको कैसे राइट ऑफ करेंगे, तो A B C को कैपिटल को डेबिट करके फिर इसके बाद गुडविल को क्रेडिट कर दो, वो राइट ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट P&L सस्पेंस अकाउंट भी, यहाँ पे जो भी 500 आया था ना, उनका पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट, उनका हिस्सा जो भी है, उसको अभी डिसीज्ड पार्टनर के लिए देने के लिए अभी P&L सस्पेंस अकाउंट डेटा टू डिसीज्ड पार्टनर। फिर इसके बाद जो भी सीज कैपिटल टू सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, मतलब क्या है, अभी जो भी उसका सी का पार्टनर अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आता, उसको हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, सो ऑलमोस्ट द प्रॉब्लम इज ओवर। अपने क्या करेंगे, एक कैपिटल अकाउंट बना दीजिए और बैलेंस शीट बना दीजिए। ठीक है, होगा? और कुछ डाउट? कुछ है? प्रतीक्षा, चंदना और सुस्मिता, एनी डाउट? माइंड अप, माइंड अप। चलो हम कल स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है, डिसोल्यूशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट कर लेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट। Good night, sir. Bye, sir. Good night.